السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم لوگ سیکھتے ہیں اسم فعل اور حرف کی وجہ تسمیہ، یعنی اسم کا نام اسم، فعل کا نام فعل اور حرف کا نام حرف کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں اسم فعل اور حرف کی وجہ تسمیہ۔ سبق کیا ہے؟ اسم فعل اور حرف کی وجہ تسمیہ، یعنی اسم فعل اور حرف کے نام رکھنے کی وجہ۔ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ یہ لفظ تسمیہ کیا ہے اور کیسے بنا ہے، تو آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سما یسمی تسمیتن۔ تفعیل کا مصدر دو وزن پہ آتا ہے، ایک وزن تو خود ہی تفعیل کا ہے اور دوسرا وزن ہے تفعیلہ۔ اگر وہ کلمہ میں آخری حرف کی جگہ حرف علت ہے، لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہے تو اور اس کو باب تفعیل سے لا رہے ہیں، تو اس کے مصدر کا وزن، اس میں تفعیل کا جو مصدر بنے گا وہ تفعیلہ بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لے سکتے ہیں ربا۔ اب یہ ربا کا جو مصدر آئے گا وہ تربیہ ہوگا، ربا یربی تربیتن۔ اسی طرح سے لبا، لبا یلبی تلبیتن، تلبیہ پکارنا، اللہم لبیک یہ کہنا۔ اسی طرح سے ہے تسمیہ، سما یسمی تسمیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں نام رکھنا۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے کہ تسمیہ کیا ہے اور تسمیہ کا کیا معنی ہے۔ آج ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا، پھر سیکھیں گے حرف کا نام حرف، اس کے بعد سیکھیں گے فعل کا نام فعل کیوں رکھا گیا۔ تو جان لیجئے اسم کا جو مادہ ہے وہ تھوڑا سا اگرچہ اختلاف ہے بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک، لیکن جو مشہور بات ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ بصرہ کے نحوی کہتے ہیں یہ اسم بنا ہوا ہے سیمون سے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور حرف کے معنی تو آپ کو بتایا گیا ہوگا طرف یعنی کنارہ، اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا یا آپ کام لے سکتے ہیں۔ میں دھیرے دھیرے ایسے آ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اسم کو اسم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نحوی کہتے ہیں کہ اسم یہ بنا ہوا ہے سیمون سے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے دونوں بھائیوں یعنی اپنے دونوں قسموں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں نا، اسم فعل اور حرف، یا اسم حرف فعل کوئی بھی آگے پیچھے کر سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ تو اس کے ساتھ اور جو دونوں قسمیں ہیں حرف اور فعل، ان دونوں سے یہ بلند ہے، اس وجہ سے اسم کا نام اسم رکھا گیا۔ اب یہ بلند کیسے ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ بلند اس طرح سے ہے کہ آپ ان مثالوں پہ غور کیجئے، ذرا دیکھو ان مثالوں پہ غور کرو۔ الولد ذاہب، دوسری مثال میں لکھ دیتا ہوں الولد ذہب، تیسری مثال میں لکھ دیتا ہوں ذہب الولد۔ ان مثالوں میں آپ غور کیجئے۔ غور کرنے سے پہلے ایک بات آپ یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی کلام تام، جملہ تامہ بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مسند الیہ اور ایک مسند۔ یعنی کسی بھی جملے میں دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، بغیر اس کے جملہ نہیں بن سکتا ہے، مسند الیہ اور مسند۔ ان جملوں میں چلیے ہم مسند الیہ اور مسند چیک کرتے ہیں۔ تو اگر جملہ مبتدا خبر کا ہوتا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، یہ ہے مسند الیہ، اور جو خبر ہے یہ مسند۔ اسی طرح سے یہ بھی مبتدا اور خبر ہے تو یہ ہو گیا لفظ مسند الیہ اور یہ ہے مسند۔ اگر فعل فاعل کا جملہ ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ فعل ہوتا ہے مسند اور فاعل ہوتا ہے مسند الیہ۔ ان مثالوں میں آپ ٹھیک سے غور کیجئے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسم اکیلے ہی دونوں رکن کا کام دے دیتا ہے، ایک مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی، یعنی خالی اسم سے مل کر ہی کوئی جملہ بن سکتا ہے، اسے حرف اور فعل کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے ہی پورے جملے کا کام چلا دیتا ہے، یعنی اس ٹائپ کا اسم رہے تبھی۔ دوسرے جملے میں آپ دیکھیے یہاں مسند الیہ اور مسند ہے، یہاں اسم اور فعل سے مل کر کے بنا ہوا ہے، اور یہاں آپ دیکھیے یہاں بھی فعل اور اسم سے مل کر کے بنا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہاں ایک جز مسند الیہ ہے اور ایک جز مسند ہے، یعنی دونوں جز جو ہے مسند الیہ اور مسند دونوں جز اسم ہے۔
यहाँ एक जुज इसम है, यहाँ भी एक जुज इसम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसम मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं इन जुमलों में फेल कोई मुस्नद इलैह नहीं हो सकता है, फेल खाली मुस्नद हो सकता है। और हर्फ की तो इन जुमलों में बात ही नहीं आई, इसका मतलब हर्फ ना मुस्नद इलैह होता है और ना ही मुस्नद होता है। तो देखिए, ज्यादा चीज बनने की सलाहियत इसम में है, ये दोनों हो सकता है, और फेल खाली मुस्नद हो सकता है, हर्फ ना मुस्नद हो सकता है ना मुस्नद इलैह। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इसम बुलंद है, इसके अंदर वसाअत ज्यादा है, तो हो गया ना ये इसम अपने दोनों किस्मों से बुलंद। अच्छा देखिए, कूफी हैं, कूफा के नहवी हैं, वो लोग कहते हैं कि इसम जो बना हुआ है ये विस्मुन से बना हुआ है, इसका मतलब होता है अलामत, और चूंकि ये अपने माना के लिए अलामत होता है, इस वजह से इसम का नाम इसम रखा गया है। तो इसे जान लीजिए कि हर लफ्ज अपने माना के लिए अलामत होता है। जैसे यज़हबु है, यज़हबु का माना वो जाता है या जाएगा, तो ये भी अपने माना के लिए अलामत है। फी का मतलब में, तो फी किसी चीज के अंदर का माना बताने के लिए, ज़रफियत बताने के लिए उसके लिए अलामत है। तो हर लफ्ज अपने माने के लिए अलामत है, तो सबको इसम कहना चाहिए, चाहे हर्फ हो चाहे फेल हो। तो ये बात जो साहिब हिदायतुन्नहव है, तो इस बात को उन्होंने मरजूह करार दिया है, राजे इसी बात को करार दिया है जो बसरियों का मौकिफ है कि इसम की असल है सिमून, यानी सिमून से बना हुआ है, इसके मतलब बुलंदी होता है, और जुमला अकेले इसम अपने दम पर ही पूरे जुमले को बना सकता है, जबकि फेल जुमले का एक जुज हो सकता है, अकेले अपने दम पर किसी जुमले को नहीं बना सकता, और हर्फ जो है जुमले का कोई अहम पार्ट नहीं बन सकता है, यानी ना मुस्नद हो सकता है ना मुस्नद इलैह। इसी वजह से इसम जो है अपने दोनों किस्मों पर बुलंद होने की वजह से इसका नाम इसम रखा गया। चलिए देखते हैं अब हर्फ का नाम हर्फ क्यों रखा गया। तो हर्फ का मतलब होता है किनारा। यहां किनारे का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जुमले में ये किनारे होगा, खाली किनारे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। किनारे होने का मतलब उसकी मिसाल है इन तंसुर अंसुर, अगर तुम मदद करोगे तो मैं मदद करूंगा, यहां देखो किनारे हैं। लेकिन अक्सर आप देखेंगे जुमले में ये वाक़ होता है बीच में, अलमाओ फिल बिरकते, पानी तालाब में है, ये बिरका है, बिरका माने तालाब होता है। ये अलमाओ फिल बिरे आप कह सकते हैं, पानी कुएं में है, फिल बिरे पानी कुएं में है, अलमाओ फिल बिरे। आप अक्सर हुरूफ को देखेंगे तो वो बीच में होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि हर्फ का नाम हर्फ क्यों रखा गया। तो हर्फ के माने किनारा होता है। किनारे होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो लफ्जी एतबार से किनारे हो, बल्कि वो किनारे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो तब फिर किनारे का क्या मतलब हुआ? किनारे का फिर ये मतलब हुआ कि वो ये जुमले में उस तरह अहम नहीं होता है जिस तरह इसम और फेल होते हैं, यानी जुमला बनाने की जिम्मेदारी इसकी नहीं होती है। जुमले के जो मेन हिस्से होते हैं उसमें ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, कोई किरदार नहीं निभाता है, बल्कि ये साइड से होकर के उसमें रद्द का काम दे देता है, सपोर्ट का काम ये कर सकता है, मेन चीज का काम ये नहीं करता है। तो जब मेन चीज का काम ये नहीं करता है, यानी और मेन चीज क्या है जुमले में? मुस्नद इलैह और मुस्नद। तो इसी वजह से इसको हाशिए पर रखा गया, इसको किनारा कहा गया, यानी इसकी अहमियत के पेश नजर इसको किनारे कहा गया, ना कि इसके इस्तेमाल के एतबार से कहा गया कि हमेशा किनारे ही इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इसम का नाम इसम बुलंद होने की वजह से, और हर्फ का नाम हर्फ किनारे होने की वजह से, यानी जुमले में बहुत गैर अहम है, बहुत ज्यादा अहम नहीं है ये, इसी वजह से इसको हर्फ कहा गया। चलिए फेल देखते हैं कि फेल का नाम फेल क्यों रखे। तो फेल का मतलब होता है काम या करना। अब फेल का नाम फेल क्यों रखा गया? इसमें एक चीज खास तौर से जान लीजिए कि जिसे हम लोग फेल कहते हैं, इस्तिलाही फेल, उसमें खाली फेल नहीं होता है, उसमें कई चीजें होती हैं। जैसे देखो फ़अला है, फ़अला है, फ़अलू, इसमें आप देखो इसमें मेन है मस्दर फ़िअलुन प्लस हुआ, तब जाकर के ये फ़अला बना है। ये फ़अला कैसे हुआ? फ़िअलुन प्लस हुमा, तब ये फ़अला हुआ, और ये फेल प्लस हुम, तब ये फ़अलू हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखें यफ़अलु, मुज़ारे ले लेते हैं, यफ़अलाने, यफ़अलूना, तो इसमें क्या क्या है? इसमें अलामत मुज़ारे है, प्लस मस्दर है फेल प्लस हुआ, इसमें भी अलामत मुज़ारे प्लस फ़िअलुन है मुस्बत हुमा, इसमें अलामत मुज़ारे है, फिर फ़िअलुन है हुम। इसी तरह से आप तमाम अफ़ाल जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखो इसमें दो दो चीजें हैं और इसमें तीन तीन चीजें हैं। तो जिसे हम लोग फेल कहते हैं उसमें खाली फेल नहीं है। देखो
फेल भी और इसम भी है। जिसे हम फेल कह रहे हैं इनमें खाली फेल नहीं है, अलामत मुजारे है, मस्दर है और ज़मीर है, और जब इन चीज़ों को आपस में मिला दिया गया तो उसको हम फेल कहने लगे। तो इसमें जो मेन चीज है वो मस्दर है। अब ये है, तो फेल को, इस पूरे को जो फेल कहा गया, क्यों कहा गया? उसमें इस्म का ख्याल या इसमें अलामत मुजारे और ज़मीर का ख्याल नहीं, बल्कि इसी मस्दर का ख्याल करके पूरे को फेल कह दिया गया। और फेल में जो मेन होता है वो मस्दर ही होता है। देखो इनमें जो फ़ाला में जो फेल क्या है? फ़िअल, ये मस्दर है, और हुआ तो मस्दर और ज़मीर मिला दिया गया तो फेल बन गया ये। तो इस फेल में मेन क्या है? इस फेल में यही मेन है। ऐसे फेलुन होमा, फ़ाला में मेन क्या है? यही फेलुन है। फ़ालू में मेन क्या है? यही फेलुन है। ऐसे ये फ़ालूना में मेन क्या है? यही मस्दर है। ये फ़लाने में या है, अलामत मुजारे फेल है, फिर होमा है, यही मस्दर है। तो फेल का नाम फेल, जो फेल में मेन होता है, जो मस्दर होता है, उसी के नाम के साथ पूरे को फेल कह दिया गया। हालांकि पूरा फेल नहीं है। आप फ़ाला कहें तो पूरा फेल है, इसमें फेल भी है, इसमें ये फ़लाने कहें तो ये पूरा फेल थोड़ी है। इसमें अलामत मुजारे है, फ़िअल ये मस्दर है, और हुमा की ज़मीर है। तो इसमें मेन चीज जो मस्दर है उसी के नाम के साथ पूरे को नाम दे दिया गया। इसको मैं मिसाल से यूं समझाता हूं, आप इसको समझ लीजिए। जैसे देखो चाय है ना, चाय आप लोग पीते हैं। चाय में क्या होती है? चाय में है पानी। चाय का नाम चाय क्यों पड़ा? अभी इसको समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चाय का नाम चाय क्यों पड़ा? देखो चाय में जो आप पीते हो पूरी चाय नहीं होती, उसमें पानी है प्लस शक्कर है और चाय की पत्ती है, दूध हो सकता है, अदरक, कई चीजें मिला करके जब खौलाई जाती हैं तो उसको जो हम पीते हैं पूरे को चाय बोलते हैं। तो क्या जिसमें जो उसमें सारी चीजें मिली होती हैं सब चाय होती है? नहीं, बल्कि उसमें इसी चाय की पत्ती के नाम पर जो मेन उसका हिस्सा है, इसी नाम पर पूरे के मिक्सचर, पूरे मिक्सचर को, पूरे घोल को चाय कह दिया जाता है। हालांकि उसमें पानी भी है, शक्कर भी है, दूध भी है, अदरक भी है, लेकिन नाम किसके नाम पर? पूरे कप पानी की तरह जो होता है गरम गरम, उस पूरे कप को क्या रख दिया गया? चाय नाम रख दिया गया। इसी चाय की पत्ती के नाम पर पूरे को चाय कह दिया गया। इसी तरह से फेल की बात है कि ये इसमें पूरा फेल नहीं होता है, बल्कि इसमें फेल भी है, मस्दर भी है, मतलब जो है मस्दर भी है और ज़मीर भी है, और इसमें अलामत मुजारे है, मस्दर है और ज़मीर यानी इस्म भी है। तो इसमें जो मेन है, जैसे चाय में मेन चाय पत्ती है तो इसी के नाम के साथ पूरे को चाय कह दिया गया, पूरे का नाम चाय रख दिया गया। ऐसे इनमें कई चीजें हैं, फेल में कई चीजें होती हैं, और मेन जो उसमें होता है मस्दर, और वही फेल होता है, वही मस्दर इसलिए फेल होता है, और उसी के नाम के साथ पूरे को फेल कह दिया जाता है। तो इस्म का नाम इस्म उसके दोनों किस्मों पर बुलंद होने की वजह से, हर्फ का नाम हर्फ की जुमले में उतना कोई अहम नहीं होता है मुस्तन मुस्तले की तरह, इस वजह से हर्फ का नाम हर्फ रखा गया, यानी वो किनारे होता है, हाशिए पे होता है। और फेल का नाम फेल उसके असल का ख्याल किया गया है कि फेल में जो असल होता है तो यानी मस्दर, उसी के नाम के साथ पूरे को फेल रख दिया गया है, और मस्दर ही फाइल का फेल भी हुआ करता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस्म और फेल और हर्फ की वजह तस्मिया क्या है, इनका नाम क्यों रखा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।